ये कर दो ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो. Yes. Yeah, I started. Okay, fine. Okay, so can you please tell me the difference between managed package and unmanaged package? Managed package. Okay. Like in managed package, we cannot edit the things. Like the classes or whatever is there on that, we cannot edit that. But unmanaged package are the packages like Apex classes, triggers or something are there. We Can can we see? edit that. Can we read the code in case of managed package? No, we cannot. It's hidden. All the things in managed package are hidden. Okay. Okay, I think you should reply like this. In case of managed package, we cannot edit. No, so we cannot read the code. Even this is invisible. This is hidden code in case of managed package. In case of unmanaged, we can. This is not hidden. Okay. Okay. Any other Yeah. difference? Why do we use manage? Why do we use? What is the benefit of both? I think if मेरे को पूरे तरीके से नहीं पता है, but if something we needs confidential, then we need managed package. Confidential. Let's say you. Which kind of confidential? Like the things, some things we don't want to like we don't want any users to see the code of that. That's why I use managed package. मेरे को ही बता दो, आप ही बता दो managed package क्यों use करते हैं. Okay, okay, fine, not an issue. So first difference is like hidden and not hidden, and second difference is so in on the app exchange, so we have only managed package and we won't get any unmanaged package on the app exchange. Okay, so third difference is we have a namespace in case of managed package. We don't have any namespace in case of unmanaged package. Okay, fourth, I will tell you what's the namespace. Okay, fourth difference is for differences like for the confidential purpose only. Let's say if I let's say if I have any some client is coming to me and they are asking me to write they are asking me to add some functionality on that or particular org. So that time if they are sending some fixed amount to me, so definitely I won't add I won't give a permission to read permission to them. I will get a managed package and I will install on their org. Okay, but in case of unmanaged package, I will if the client is connected with me for the long time, definitely I will create the like unmanaged package and I can give everything, every access, read, write everything to them. Okay, so these are the things. And what's the namespace is? Namespaces. What's the use of namespace? I don't know. Okay, no worry. So let me just share my screen. मेरे को और एक चीज भी जानना था, can we make a thing managed package? No, right? We cannot make anything managed package. We can make manage and manage both. Both, like how can we make it as managed package? Are you able to see my I have screen? not done anything like that. Are you able to Yeah, see? I can see. Okay. So we'll go to manage, we'll go to package here. Okay, so we are able to see unmanage only. Here, if I'll create any of the package here, so एक मिनट. are you ready now? Hello, Rumat. Rumat.
एक मिनट सॉरी, एक मिनट। 2 मिनट होगी। छोड़ो, आप ही बोलो। हाँ, आप ही बोलो, कोई बात नहीं। हाँ, बोलो। क्या हुआ? नहीं नहीं। अच्छा, आप ये पैकेज में लेफ्ट साइड में पैकेज हम्म शुरू से एक बार दिखाओगे क्या पैकेज? वो एक्चुअली कॉल ओके। चल रहा है, मीटिंग चल रहा है ना, मैंने अपना केटी दे दिया, वो दूसरा केटी चल रहा है, तो मैं देख रही थी कि कहीं ऑन वॉन ना हो स्पीकर मेरा, तो यहाँ से आवाज जाएगा इसीलिए। हाँ, Okay, fine. Okay, great. Okay, fine. Okay, so what I was trying to show you. So see this, I'll write the package on the quick find box. Okay, I'll be able to see this page. Okay, then so it is showing. So what's the package type is allowed is a unmanaged only. Okay, so what will I do here? Directly I'll click on the new button. I'll like whatever the name of the package. So this manage is disabled here, so I won't be able to create. I can't create anything. Then I can add the number of components like a chain set. Have you ever used a chain set? yeah. Okay, so this is like a chain set, right? So Yeah. now whatever things you want to add here, so accordingly, if you want to add all these components, accordingly you can add here, and whatever related things, related to these things, everything will be added automatically. So the finally, if every test class everything is more than 75% code coverage, then you will click on the upload button. Then finally, it will take some time, and if it is To perfectly, update. then it will upload it if everything is okay. Otherwise, it will show some code coverage error, like it is less than 75% code coverage. Definitely, it will show now because blindly we added the things. Okay, whatever exception we are getting here, so accordingly it is showing the error. Okay, so same way, what we have to do now. So this is related to manage package, unmanaged package. So how can we create the managed package? I'll click on the edit button, and so this is related to my dev hub. So are you on the system now? Yes. So can you please log in and can you share your screen? I'll show you in your role. Like my system, okay, but I have not joined from system. I have joined from mobile. Okay, fine, not an issue. So you know why it is showing an error? Why can't we create the manage package in this one? Please, test. You can implement in developer edition. Oh, that is not it. No, Okay, no. in developer edition. No, we can do. See, let me show. That's But why. because test failures happen, right? Test failures happen. Let me just go to login.salesforce.com and let me go to any other account. See, in sandbox, we cannot create any manage package. Okay, in developer Okay. org, we can create manage only in developer org, even we cannot create in production. This is login.salesforce or test.salesforce? No, login.salesforce.com we can do. Okay, let me go to Surinder. Okay. अरे यार इसमें मुझे नहीं करना, मेरा वो शीशे वाला है। चलो कर लेते हैं। Okay, fine. So what will I do here? I'll go to setup. I'll go to package now. Hopefully, like we can create one managed package only at a time. But yeah, definitely, like they haven't used. So I'll click on the edit button now. Now it is showing like this, but in my case, it was showing like this. Why it was showing like this? Because I have, this is my dev hub. I created a scratch org from this org. So if I can create a scratch org, so in that in case of scratch org, so we cannot create a any manage package. Okay, so because so that's what the reason. So but in this scenario, in this developer org, I didn't create any scratch org. So if I'll click on the continue button, and it is asking a namespace prefix. Okay, I can say it's Hurmit. Sorry, what's your name? Hurmat. Sorry. Okay, namespace is for unique, as it acts as a unique identifier, right? Yes. So it's a Hurmat Khan. Jahan, you know? Yeah. Like this, right? JAHA.
JAHAN. JA. JA. HAN. HAN. H for horse, A for apple. अच्छा, अच्छा. Uh-huh. Okay, fine. Okay. So Uh, available. Okay, I'll click on the review my section and I'll click on the save button now. Okay, so now it is showing manage or unmanage. Okay, so if I'll click on the new button, so I'll be able to create this manage package as well. Okay, so if I'll click on any of the manage package, so whatever components I'll add here, so that will be hidden for third party. Let's say this is an app only. I'm adding this app only, nothing else. Okay, whatever the things related to this, so everything is added automatically. So let me do one thing. Let me click on the upload button. If something is related to development, definitely that will be filled. But if it is not, then it won't be filled. So let me just all of the page layouts. So now whatever things I added here, that will automatically be uploaded, and then I can share this link with you if you want to try after 2 or 3 minutes. So you will click on that, and then you can install your org. So let me just share on the group only. Okay, so that's the thing. Okay, so now if I want to deprecate this package, I can deprecate. No one can use this button, and this link is also work as a backup perspective. If you want to take backup of your code, then you can create a package and you can keep with you. Okay, even after some days you want to use this link, so whatever code you added in this link, so same code you will get it, because everything is uploaded on the server only, on the cloud. This is working as a Google Drive. You said that like you will, okay, you said you will share this URL to us, but this will not be what we say visible to, like this managed package will not be visible to us, right? Exactly, yes. Even in case of unmanaged package, you can, let's say today I written 100 lines of class. Okay, and after 1 month I shared a link. I created some unmanaged package and I created a link and I shared with you. And after 1 month, and let's say I did some wrong things in the code, and after that I want to make some changes on that code. So on the same time, so I can't do it, right? I can't call that I don't have any backup of the code backup. So then I can ask a link from you, and the same code whatever we had previously we uploaded on this link, so we can like get the same backup. No. I was telling this installation URL. You said like you will share with us and we will be able to install it. That is what you are saying, right? But can we do that? Because this is in your org. Then how can we install it? Array, login.sales. See, let me show you now. See, this is my one org. See, this is Surendra Kumar, right? This is one user. I clicked on this one. So what they are asking now, I'm not going to this org. I'm going to this org now. So let me just show Different you. user, different org. Different org. Even see why it is showing, because it is not upload, still it is uploading now, so it might take around 5 minutes to upload the things. So it is asking the problem will prevent the packages being installed. So so might be request might be does not exist, or it is deleted. Okay, and if it is recently created package version, so please try again after few minutes. Okay, so you have to wait for like around 5 minutes. So that time might be, it can be, let me refresh again, so it can be available I got anytime. your point. I got your point, like how we can install it, because for this we are using a namespace which is a unique identifier. So if someone is giving this unique identifier, like it's kind of it's for all the Salesforce, not only for your org, it will be available to everyone. Like if we know that
unique identifier, then if you are giving us that link, then we can install it, right? Mm-hmm. Right. Yeah, right. You know what's the use of So namespace? what is the use of Namespace. What's the namespace? benefit of that? That it acts as a unique identifier, right? No, definitely I know. Then what is the use of that? If you are not using a namespace, then is there any problem or not? Like if there is no namespace, then anyone can use it. If there is a namespace No, only no, to the no, person, no, 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 no. then Let me tell you. Oh, let me tell you. So, let's say namespace is required in case of managed package, not in unmanaged package. Okay. So let's say yeah. this is my App Exchange application. Okay. Okay. And this is my Salesforce. Okay. Always managed package is uploaded on the App Exchange only. Okay, not unmanaged. Yes. Let's say you created one Apex Yeah. class. It's XYZ controller. You created one class, and the same you don't have any namespace now. The same class you have in the App Exchange as well, and you are trying to install this application in the Salesforce. Okay. Same way, so that definitely it will throw an error message because class is already installed. Okay, sorry, class is already created because we cannot create a There. duplicate class with Yeah. same name, right? But if I will use the namespace, Right. it's prefix. It will automatically be added in the on the like prefix with the Apex class name, and then it will not make duplicate. It will be unique, right? Got it or Okay. no? Right. Right. Ha, Yeah. Yeah. that's the use of namespace. Okay, Okay. so that's why we are using namespace and all. So yeah. So do you have any doubt now? अच्छा मैं बोलती हूँ, यानी कि मैं बताती हूँ मैंने क्या समझा, ठीक है? हम मैनेज पैकेज को एप एक्सचेंज में डाल सकते हैं, हम अनमैनेज को कभी भी एप एक्सचेंज में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है? और हम मैनेज पैकेज पे सपोज एक क्लास हमने ऐड किया, ठीक है? और सेम क्लास हमारे अनमैनेज पैकेज में भी है, तो अगर हम वो क्लास जो एप एक्सचेंज पे डाला है और उसको इसमें लेके आएंगे, तो हमको डुप्लीकेट एरर आएगा क्योंकि ऑलरेडी सेम क्लास विद द सेम नेम इज ऑलरेडी देयर, सो वी विल take a namespace as a like it will acts as an additional prefix for that, तो ऑब्वियसली वो अलग मतलब उसका और इसका नाम अलग ही हो जाएगा अगर हम नेम स्पेस ऐड करेंगे, तो इफ वी ऐड द सेम नेम from the using a managed package, then we can add it into our org, right? All right. Correct. So so now let's say now if someone will ask you the question, let's say can we create two components with same name, so you can say yeah we can create, but if there is some namespace then we can do, otherwise we cannot do. Okay, because of duplicacy error. हाँ So now हाँ सब पता है. अच्छा, आपने क्या क्या डिफरेंस बोला मैनेज और अनमैनेज में? फर्स्ट वो हिडन होता है, ये मतलब मैनेज हिडन होता है, अनमैनेज हिडन नहीं होता है. सेकंड इज वी कैन नॉट एडिट और समथिंग, है ना? दोनों का इसमें एडिट नहीं कर सकते, इसमें एडिट कर सकते हैं. तीसरा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम यूज करते हैं मैनेज को, और चौथा इसके लिए क्या बोलते हैं, इस पे नेम स्पेसेस ऐड होता है और मैनेज पैकेज ऐप एक्सचेंज में डाला जाता है. वी यूज मैनेज पैकेज फॉर ऐप एक्सचेंज, राइट? राइट, ठीक है. ठीक है, हाँ. सही है, ठीक है. So these are the things related to manage and unmanaged package. ओके. Okay. हाँ, अब मेरा सही से हुआ. हाँ. Fine. Okay. So okay, so what is app exchange? What is app exchange? In app exchange we have different types of apps.
ऐप एक्सचेंज पे तो बहुत तरीके के एप्स वगैरह होते हैं, इतना मुझे पता है, और नहीं पता Have you कुछ। ever used App Exchange? नहीं। Okay. So App Exchange is nothing, it's a marketplace where you can do your own business. Your own business means if you created some app, you want to earn money. So with the help of App Exchange, you can like earn the money, because if you have uploaded a good application on App Exchange, and you can, if that application is paid application, then your user will install the your application and they will pay you the money. Okay, so Okay. that is a marketplace, because you will get the application from App Exchange a free of cost, and it's a free it's a paid application from App Exchange. So what is the benefit from there? If you have some application, let's say you want to start your own business, your own business or company want to start their own business, want to add some more functionality. So let's say they want some functionality, additional functionality. Okay, if they will pay, if that requirement is taking around 2 months of time, and two developer is working continuously working on that, so then they have to pay around even they have to wait till 2 months, and they have to pay around like might be 2 to 3 lakh rupees, might be more than that. Okay, so and if they are getting a free application or 5-10,000 they need to pay from App Exchange, then why can't they purchase from there only, right? Like whatever existing, like whatever inbuilt functionality they can get it. Okay. That's the use of that. तो आपने ऐप एक्सचेंज पे क्या डाला था कि टेस्ट कवरेज का कुछ तो डाला था ना आपने? So I uploaded 2 applications. One is saying like your current storage of your Salesforce. Let's say as of now we don't have any functionality in Salesforce. We didn't have any functionality in Salesforce where we can get an alert message before exceeding the limit of your Salesforce storage. Okay, let's say I created a I added 2 conditions there. So even user can manually select the soft limit and hard limit. Let's say you are selecting the 70% of your soft limit and 90% of your hard limit. When your storage will meet around 70% of your Salesforce storage, you will get one limit, one alert message on your mail, and that will set the soft limit. And if it is exceeding 90%, then you will get one more hard message that is exceeding 90% okay of storage. तो यानी कि हम लोग ऐप एक्सचेंज में फ्रीली हम लोग ऐप मतलब डाल सकते हैं, और जब भी मतलब कि उसमें से कोई भी उस ऐप एक्सचेंज से कुछ भी लेता है तो उन लोग को पे करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंस्टॉल कर लो अपने वर्क में, मेरे वाली कर लो, फ्री में कर सकते हो। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। Like, see, we have 2 things in Apex. Let me just share my screen. Let me show you. तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? Salesforce देगा? नहीं, अरे नहीं यार बुद्धू, सॉरी। So हाँ बोल लो, कोई बात नहीं। तो App Exchange पे जाके App Exchange पे जाके, so if you are writing here, let's say I'm writing my app name, I'm writing alert app. Okay, so whatever alert app will have in the Salesforce, all the alert app will get here. See, this is my alert app. I created this application. Okay, so for my company, and this is a paid application. So this is a free of cost. Okay, even for identify, this is Amarjit @ in my email ID. Okay, even I give this screenshot. Okay, so yeah, so this is my application, and so I uploaded, is a free of cost. Anyone can install this application to click on get it now. Okay, but if you want like some more additional things, like you don't like this application and you like this master mailer, okay, so you will go to paid application and you will click on that and you will download this application. You will download this one. So if you are like the functionality of this application, you'll go there and you'll read the reviews of this application and all. So after that, if you get these kind of things, then you easily can so if you like this application most, then you have to pay some money to this company, and there is some like some कुछ पैसे Salesforce को देने पड़ते हैं,
there is some discount, not discount. अरे मैं समझ गई, काइंड ऑफ जैसे कि हमारे एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर होता है, वैसे सेल्सफोर्स के लिए ऐप एक्सचेंज हाँ होता है, सेम राइट? जैसे सेम बिल्कुल स्टोर में सेम। प्ले स्टोर में कुछ फ्री होता है और कुछ पेड होता है, राइट? तेज हो गई है जैसे लड़की। इधर भी कुछ फ्री होता है और कुछ हाँ तो वही हाँ होता है। ठीक है। ठीक है, even Salesforce, we have one application on Salesforce, the corona measuring. So if you देखो want, लेकिन मुझे एक चीज जानना था, जैसे प्ले स्टोर में जितना डाउनलोड्स होता है उनसे उसको फायदा होता है, तो इसमें भी वैसा ही होता है कि जो फ्री वाला, वरना फ्री वाले लोग कैसे पैसे कमाते हैं, मुझे वो नहीं जानना है। फ्री वाले पैसे थोड़ा ना कमाएंगे, फ्री वाले पॉपुलैरिटी कमाते हैं ना, कंपनी का नाम हो रहा है ना, अच्छा। क्लाइंट बढ़ रहे हैं। अभी लेट्स से आई क्रिएटेड सी माय एप्लीकेशन इज वेरी गुड, लाइक मैं पेड भी डालता ना, बहुत पैसे कमा सकते थे हमारी कंपनी, ठीक है। बट उनका हाँ आइडिया क्या था कि हमें क्लाइंट लाने हैं, क्लाइंट कब आएंगे, फ्री को देख के लोग डाउनलोड करेंगे, हमारे पास उनका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ईमेल आएगा, सब कुछ आएगा हमारे पास, पूरा हमारे पास लीड क्रिएटर। ओके। जैसे एक बंदा इंस्टॉल करेगा ना इसको, तो वो क्या होगा, जो हाँ भी बंदा हाँ इंस्टॉल करेगा ना, हाँ। तो उसका सारा का सारा डेटा हमारे लीड ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो लीड क्रिएट होता रहेगा, जो भी इंस्टॉल ओके। करेगा लीड बन जाएगा, जो भी इंस्टॉल करेगा लीड बन जाएगा। तो जैसे भी लीड बनेगा, हम करेंगे क्या, उस बंदे के पास एक ऑटो वर्कफ्लो वगैरह कुछ ऐसा लगा देंगे, जैसे भी रिकॉर्ड क्रिएट होता है ना, एक वेलकम का ईमेल जाए, थैंक यू टू हाँ इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन, एक दूसरा ईमेल जाए उसके हाँ। पास, दूसरा ईमेल जाए उसके बाद 2-4 दिन बाद, अपने कंपनी के बारे में बताना है कि हमारी कंपनी ये करती है वो करती है। जो इन केस आपके मतलब एक साल में 1,000 लोग इंस्टॉल करते हैं आपके प्रोडक्ट को, तो 1,000 में से जो हाँ आपके 20 से 30 प्रोजेक्ट भी आपके पास आ जाते हैं, क्लाइंट इंप्रेस हो जाते हैं हाँ। आपसे, तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो आपके पास इसलिए आएंगे कि इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा और बताओ, हमें कुछ और ऐड करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, पे करेंगे आपको पैसे, मतलब आएंगे। लेट्स से मैंने अलर्ट ऐप बनाया, उन्होंने बोला कि मुझे लाइसेंस के लिए भी कुछ एडिशनली चाहिए। हम्म, आई गॉट इट। आपने ये काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ था कि मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने से अच्छा है कि हम एक चीज कुछ ऐसा दें कि जिससे उन लोग का आई कैचिंग हो और हम लोग की इधर उनका लीड्स भी बने, एंड देन उनको अपने बारे में पता चले और वो फिर हमारे कस्टमर्स बन जाए, राइट? एग्जैक्टली। हाँ हम्म। ओके फाइन, ओके फाइन, सो नाउ टेल मी। मुझे एक चीज पूछना था। आपको एक ही चीज पूछना है, दो चीज आपने कितनी चीजें पूछ ली, पूछते हो एक चीज और पूछ ली। मैंने पूछा कि आपने ऐप एक्सचेंज के बारे में बताया, तो मैं वो चीज मतलब आपने कि बोला मुझे एक चीज पूछना है, मैंने कहा पूछो, फिर आपने एक चीज और पूछ हाँ। ली, मैं पूछो, फिर एक चीज और पूछ ली, आप ये पूछना मुझे 3-4 चीजें पूछनी है। नहीं नहीं, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम लोग ईमेल अलर्ट्स भेजते हैं, राइट? हाँ ठीक है, तो हम लोग का क्या विजुअल फोर्स पेज से जो भी होता है वो भेज सकते हैं, या फिर मतलब भेज कि सकते हैं, वर्कफ्लो में हाँ। वर्कफ्लो लेकिन देखो। अगर हाँ लेकिन हम लोग को अगर ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है, कुछ चेंज हुआ हम लोग को उस पे, मतलब कि एक लाइटनिंग कंपोनेंट में कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है, और उसमें से हम लोग को वैल्यू जो चेंज हुआ मतलब आया, उसमें से अगर हमको ईमेल अलर्ट भेजना है, एक अटैचमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में वैल्यू पॉपुलेट करा के भेजना है, हाँ, तो तो वो तो आपका देखो, वो वो तो आपका डॉक्यूमेंट, वो तो आपका पीडीएफ रन एज पीडीएफ ही बनेगा, वो तो आपका विजुअल फोर्स वगैरह लाइटिंग कंपोनेंट वगैरह से ही होगा, लाइक हाँ, इफ यू तो वांट वो टू तो हम पॉपुलेट। ऐसा एडमिन से कर पाएंगे, मतलब एडमिन से तो नहीं कर पाएंगे ना उसको। एडमिन से देखो कुछ चीजें हो जाएंगी एडमिन से, लाइक आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम एडमिन साइड एज वेल, लेट्स से हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे हर चीज पे नहीं होती, बट कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, लेट्स से अपॉर्चुनिटी, आपको कोई कोटेशन वगैरह सेंड करनी है, आपने वहाँ पे अपडेट किया, हम्म। और अकॉर्डिंगली यू इम्प्लीमेंटेड अ वर्कफ्लो रूल एंड विद दैट यू एडेड द अटैचमेंट, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैचमेंट ऐड का ऑप्शन होता है कोड के अंदर, सेल्सफोर्स अपॉर्चुनिटी कोड के अंदर। तो कोड के अंदर जैसे भी होता है उसमें कोड लाइन आइटम्स वगैरह होते हैं, तो आपके पास पूरी ईमेल पे वो आती है, बट वो स्टैंडर्ड होता है, बट आपको डायनेमिक कुछ और बनाना है तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट पे जाना पड़ेगा।
हाँ वही। मतलब हाँ उससे लाइक बेटर हम। ऑप्शन ये है ना, ईमेल टेम्पलेट बना लो, वहां पे पॉपुलेट करवा लो बढ़िया सा उसको, मतलब एज ए डॉक्यूमेंट वगैरह का। हाँ ईमेल टेम्पलेट की जैसे हम बना भी सकते हैं, लेकिन ईमेल टेम्पलेट में हम उस पे सब कुछ ऐसा, हाँ, उसको लुक एंड फील वैसा दे पाएंगे क्या डॉक्यूमेंट की तरह? हाँ टेम्पलेट में डिजाइन कर लो ना, देखो सारा पूरा कस्टम जो आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अलग अलग बनाना है तो वो तो नहीं होगा। हाँ ईमेल टेम्पलेट में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जैसा आपको बनाना वैसे ही हो जाएगा। वो विजुअल फोर्स से होगा फिर आपका। विजुअल फोर्स पेज नहीं बोल रहा मैं, विजुअल फोर्स ईमेल टेम्पलेट बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गई। हाँ 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 हाँ, क्योंकि हम लोग का चार टाइप का होता है ना, कस्टम, एक विथ लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, और एक एचटीएमएल, टेक्स्ट। और एक विजुअल, राइट? टेक्स्ट, हाँ हम्म। सॉरी, टेक्स्ट। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा ओके। आप बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने एक ही पूछा। अच्छा। अच्छा, सो व्हाट इज स्टैटिक रिसोर्स इन सेल्सफोर्स? ये तो डिस्कस हुआ था, स्टैटिक रिसोर्सेस। ओके, व्हाट इज फिजिकल ईयर? फिजिकल ईयर के लाइक फिनेंशियल ईयर जैसे होता है ना, हर कि कौन से लाइक मार्च टू मार्च 2020 टू मार्च ओके 2021, फाइन हम ऐसा फाइन, गॉट इट फिजिकल ईयर गॉट इट कहते गॉट इट गॉट इट। हैं। हाँ हाँ। Okay, so we can divide the years, right, in different यस, different, yeah. राइट, Okay, so या that will be a financial year. We can say it's in quarterly, या halfly, or huh. या Okay, so let's say I have one requirement. A requirement is, let's say if my opportunity is going to closed one. Okay, I'm clicking on save button. So then some flower should be comes on the top on you. सम व्हाट? Flowers, कुछ फूल बरसने चाहिए आपके ऊपर। ओह माय गॉड। हाँ फंक्शनैलिटी यही है। नहीं हंस रही, सच में होता है। हाँ होते तो जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखने से फेसबुक पे भी पटाखे फूटते हैं। हाँ बोलो। पटाखे। हाँ तो वही है, आपके ऊपर फूल बिखरने चाहिए। हाँ, तो वो कैसे होगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ वही बोल रही हूँ, आप पूछ रहे हो कि कैसे होगा, राइट? हाँ इट्स सिंपल। ये तो नहीं पता मुझे। दुकान हाँ से वो फूल सिंपल लेके आओ होगा, और बट मैंने नहीं। दुकान से फूल लेके आओ, जैसे भी आपने क्लोज बोन किया किसी को बोल दो मेरे ऊपर डाल देना। ये सच में हम मजाक कर रहे थे, ये सच में हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा, क्वेश्चन है। हो नहीं सकता है ये सच में है। है। एक्चुअली हाँ क्या होता है ना, वहाँ पे एक हाँ सेल्स प्रोसेस होता है अपॉर्चुनिटी के अंदर, सेल्स फोर्स में। तो सेल्स प्रोसेस में हाँ जाके सब करना पड़ता है। आप देखना, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लावर्स फ्लावर्स वगैरह ऊपर से आते हैं, जो ट्रेल हेड का बैचेस वगैरह कंप्लीट करते हो ना, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ आता है। तो सिमिलरली हाँ वैसे ही हाँ, होता हरा हरा कलर का पटाखे फूटते हैं। हाँ, वो हो यू हैव कंप्लीटेड, ऐसा आता है ना। है। हाँ, तो सेल्स प्रोसेस में होता है वो। हाँ देखिए क्या एक बार, मैं भी खोलती हूँ, एक मिनट। दुखी कर लिया लोगों ने। क्या कर लिया? दुखी दुखी। आपके क्लाइंट ने? हम्म। अरे वो बंदे का क्या, उसका रिजल्ट आया क्या, दुबई वाले का? मुझका मेरी बात ही नहीं हुई उससे। अरे यार इतना काम होता है अब। हाँ
और मत, आप ट्राई कर लेना इसको, नहीं होता तो कल हाँ करते हैं। क्या हुआ? आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कल कर लेंगे इसको। सेल्स प्रोसेस ना, हाँ फीचर सेटिंग्स में होता है ये सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स प्रोसेस में और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। बहुत होती है, और सेल्स प्रोसेस आपका हम्म, कंप्लीटली सेल्स फोर्स का जो मेन पार्ट होता है बिजनेस सेल्स प्रोसेस से ही तो होता है। हाँ हाँ, वही तो, जो प्रोबेबिलिटी वगैरह आप हमारे सिलेक्ट भी करते हो, जो ड्रॉप डाउन में स्टेज वगैरह में वैल्यूज वगैरह आती हैं, कहाँ से आती है वहीं से बात। हाँ स्टेज वगैरह के केस केस का स्टेज और मैंने इसमें सेल्स प्रोसेस में टेस्ट से हाँ पिकलिस्ट वगैरह के लिए यूज होता है सेल्स प्रोसेसेस। ये सेल्स प्रोसेस में आएगा हमारा फ्लावर्स वाला। हम्म। प्रोस्पेक्टिंग ओके सेव Okay, fine. So tell me one thing. Hello? Hello? क्या? हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो हाँ सुनाई हेलो दे रहा, हाँ दे रहा है, दे रहा है। हाँ, okay. Tell me, like, what will happen if you forget to enable your domain, my domain? enabling my domain like वो हमारे नाम का एक क्या बोलते हैं लाइक यूनिक डोमेन हमारा एक क्रिएट हो जाएगा सेल्सफोर्स के अंदर। हम्म। सो दैट मतलब कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि दैट दिस बिलोंग टू पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ऐसे रहता है तो पता नहीं, मतलब कि माय डोमेन तो यूज होता है ताकि पर्टिकुलरली एक यूजर के लिए एक यूनिक डोमेन होता है, मतलब कि हमारे आइडेंटिफाई करने के लिए कि जैसे बोलते हैं आपका नेम स्पेस इज काइंड ऑफ यूनिक रहता है, वैसे ही डोमेन भी हमारा यूनिक होता राइटिंग है। कंपोनेंट नहीं लिख पाते इसके बिना। हाँ बस राइटिंग कंपोनेंट नहीं लिख पाओगे। लेकिन एक बात बताओ कि डोमेन होने के वजह से लाइटनिंग कंपोनेंट क्यों लिख सकते हैं, नहीं होने से क्यों नहीं लिख सकते? डोमेन मैडम नेम स्पेस वाले रहता है, इसमें नेम स्पेस वाला काम रहता है, इसमें नेम स्पेस की तरह ही होता है। तो वैसे भी अगर हम एक लाइटनिंग कंपोनेंट में दूसरा नाम कुछ अगर हम क्रिएट करते सेम जैसा, तो वैसे भी हम लोग को दिखाता है कि हम डुप्लीकेट नहीं क्रिएट कर सकते। तो मतलब कि समझे नहीं आप, हाँ नादान हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें हाँ ना, इसमें अपना जो लाइटिंग कंपोनेंट होता है ना, तो बड़ा ही मासूम होता है। तो लाइटिंग कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे अपना हाँ अपना जो नेम स्पेस बोलते हैं, नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस का तो आपको समझ में आया क्या। आप बोल रहे हो कि पहले हम नेम वो क्रिएट करते हैं, डुप्लीकेट क्रिएट करने नहीं देता, तो ऑब्वियस सी बात है, डुप्लीकेट तो हाँ डुप्लीकेट का मतलब वो वहां से होता है अपना एफेक्शन से, हाँ वो वाले यहाँ वहां पे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ नेम स्पेस होने के बाद भी आप डुप्लीकेट क्रिएट करते रहोगे, डुप्लीकेट फिर भी नहीं क्रिएट कर पाओगे आप। नहीं, यहाँ पर तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे वैसे भी। हाँ, डुप्लीकेट तो क्रिएट मैं नहीं ये कर। बोल रही थी कि डुप्लीकेट तो देखो, मैनेज और अनमैनेज पैकेज का ये था कि देखो अनमैनेज पैकेज को अगर हम यहाँ पर मैनेज में अगर लेके आते हैं, मतलब कि अगर हम ऐप एक्सचेंज का कुछ अगर हम इधर लेके आते हैं, पर यहाँ पर तो वैसा कुछ सिनेरियो नहीं है ना कि हम दूसरे जगह से उठा के लेके आएंगे। अगर विद इन द सेम ऑर्ग है तो हम्म। लाइटनिंग कंपोनेंट मतलब कि देखो हम वहां पर क्या कर रहे थे कि दूसरे जगह से हम अपने ऑर्ग में लेके आ रहे थे, तो इसीलिए हम यूनिक मतलब नेम स्पेस रहता है तो वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एंड वी आर एबल टू ऐड इट। बट यहाँ तो ऐसा कुछ सीन नहीं है ना, हमको अपने ही ऑर्ग के अंदर है
तो अगर वो विदाउट अगर वो डोमेन के अगर होगा तो हम क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, मैं ये बोल रही हूँ, ये पूछ रही हूँ। देखो देखो इसका जो मेन रीजन है ना वो तो मुझे भी नहीं पता, मतलब हाँ, इसका जो मेन रीजन है वो तो मुझे भी नहीं पता, मतलब 1 सेकंड 1 सेकंड। एक्चुअली अगर हम कस्टम डोमेन देते हैं तो वो हमारा यूनिक डोमेन यूआरएल क्रिएट करता है, वो तो पता है। वो फिर हमको ऑथेंटिकेट भी करता है, वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज होता है। और वो ब्लॉक और रीडायरेक्ट करता है रिक्वेस्ट जो यूज नहीं करते हैं। बाप रे, क्या हो रहा है? क्या? कुछ आवाज आया? नहीं वो गलती से वो एक्चुअली स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लिक हो गया था, वो क्लाइंट का वो आ रहा था। अच्छा हाँ, तो ये वाला माई डोमेन वाला थोड़ा देखेंगे, मुझे भी देखना है, ठीक है। राइटिंग कंपोनेंट के लिए मैंडेट एक्चुअली पता है, मुझे पता था बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि रीजन क्या था। इसका पर्पस, इसका क्या पर्पस है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका बताती हूँ। इसका पर्पस ये है कि ये क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए ये यूज होता है, ठीक है। एक यूनिक डोमेन, एक तो यूनिक यूआरएल बनाता है, दूसरा कि ये मतलब कि रोकता है या फिर रीडायरेक्ट करता है ओके जो रिक्वेस्ट है जो कि नया डोमेन यूज नहीं करते हैं, हाँ और ये एट अ टाइम मल्टीपल सेल्सफोर्स ऑर्ग में काम कर सकता है। अच्छा अच्छा क्या समझ में नहीं आया? और मुझे एक और बात बताओ, ये वर्क इन मल्टीपल में देख के पढ़ रही हूँ, वर्क इन मल्टीपल सेल्सफोर्स ऑर्ग एट द सेम टाइम, मतलब मल्टी सॉरी क्या बोल रहे हो? मतलब इट वर्क्स इन मल्टीपल सेल्सफोर्स ऑर्ग एट द सेम टाइम। मल्टीपल सेल्स पे सो एट द सेम टाइम, हाँ कर सकते हैं ना। कैसे? अरे मल्टीपल सेल्स फोर्स मींस मल्टीपल सेल्स फोर्स यूजर का मतलब है इसका। मल्टीपल आप यूजर हो, मैं यूजर हूँ, कोई और यूजर है, तो हम सेम टाइम पे ये काम नहीं कर सकते इस पे। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, ये उसका मेन पर्पस है, ठीक है ना। हाँ फाइन ओके। हाउ कैन वी रीनेम द स्टैंडर्ड टैब्स? टैब्स, स्टैंडर्ड टैब्स, यस आर यू श्योर? यस। Yes, we can do. Okay, so what is inner class in Salesforce? क्लास के अंदर क्लास, इनर क्लास। हाँ क्लास के अंदर क्लास ही होगी। नहीं, इसका आइडिया मुझे पूरा नहीं है। ओके इनर क्लास, आपको पता है रैपर क्लास क्या होती है? हाँ। तो रैपर क्लास ही तो इनर क्लास होती है। मुझे लगा पता नहीं और एक क्या इनर क्लास होगा करके। हाँ, रैपर क्लास तो पता है। क्या होता है?
सपोज हम लोग उस रैपर क्लास में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक वेरिएबल के जैसा ले सकते हैं। सपोज हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज कि जैसे कि 2 रिकॉर्ड टाइप हैं, ठीक है। 2 रिकॉर्ड टाइप पे हमको सेम ही चीज, सेम ही क्या बोलते हैं, फील्ड नेम, ठीक है। मतलब अगर हम एक कस्टम ऐप कस्टम लाइक मतलब कस्टम पेज बना रहे हैं, ठीक है, और उस पे हम लोग सेम ही फील्ड नेम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पे हम लोग को वैल्यू जो है एक ही फील्ड का वैल्यू डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप में 2 अलग अलग नाम से दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग वो अचीव कर सकते हैं रैपर क्लास से, लाइक उसका नेम जो चेंज करना है वो हम रैपर क्लास से कर सकते हैं। एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस में, मतलब एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में मुझे चीजों को ट्रांसफर करना है, तो रैपर क्लास, आपने रैपर क्लास कभी लिखी है? सही बताना, काम किया है? काम तो किया है उसमें, सही है। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था तो उस पे मैंने इम्प्लीमेंट करके किया है। सही है, ये मैंने खुद किया है, बता रही हूँ, ये वाला मैंने खुद किया है, ये बता रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है। कैन यू यूज रैपर क्लास इन केस ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन पे हाँ यूज तो कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, यूज तो कर सकते, यूज तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना, क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना। हाँ उस पे प्रॉब्लम क्या है, मैं वही बोल रही हूँ। तो पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मैं नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर सकते हैं। हम्म एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन मुझे पूछते होंगे जहाँ पर मुझे पता होते हुए भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे लगता है कि हो नहीं सकता है क्या। डाउट लगता है, जिस तरीके से बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जो हमें पता भी होती है चीजों का, हमें लगता है क्या पता नहीं होती हो, है ना, हमें श्योर होता है, लेकिन ये है कि जब बंदा इतने इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है, क्या पता गलत हुआ हो। पूछ रहा है, हाँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कर सकते हैं ना। अब इतने हाँ कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोलते तो क्या हो नहीं सकता है क्या, तो फिर बोलती हूँ कि पता नहीं, फिर इसलिए फिर मैं पता नहीं बोलती हूँ। हाँ, सही है। अच्छा, फाइन। सो तो वो और जाग, ठीक है। सो व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट, suppose if we want to show records, like in a page, if we are showing records from 1 to 15, we want to show the records from 50 to 100, like next page, uh, then we can use offset for that. Like we can give that count to show that the number from where we want to see records after that. Can you That can you number. pass number of records between 10 to 15, between 10 to 15 records from offset, like from one SQL, one line of code only? 10 to 15. Let's say there is some indexing like 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 15. So can we pass the record between 10 to 15? And we have total 15 records in database. From 10 to 50. 15. No, like from 10 to 15. Like total we have how many records? 15. So we can give offset 10. Then after that we can get 10 to And if 15 we have records. 20 records and we want to fetch from 10 to 15, then Then I don't know. no, we cannot do. ऑफसेट उसके बाद ऑफसेट यूज करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस जैसे कि टोटल 20 रिकॉर्ड्स है, हमने फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स चाहिए और उसके बाद में हमको कुछ लास्ट मतलब
उसके बाद का रिकॉर्ड चाहिए तो हम उसका ऑफसेट दे सकते हैं ताकि उसके बाद का रिकॉर्ड्स हमको दिख पाए, कितने के बाद हमको चाहिए। सही है। So, आप रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड सेट वेयर हम यूज करके हम लाइक प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना से इतना चाहिए मुझे वो नहीं पता कि कैसे लाते हैं, कि like, वो नहीं पता मुझे। ओके, देखना आप इसको, मैंने आपको डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर किया ना, वहाँ पे लिखा हुआ है सभी। लेकिन हम इसमें ऑफसेट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इसमें इसमें तो जैसे कि हम नेक्स्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हमको मिल सकता है, लेकिन 10 से 15 जैसे कि हमारे कर 20 सकते हैं ना, रिकॉर्ड्स और हम तो कोड 10 कोड से में जाके पेजिनेशन लगाते हैं। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है? पेजिनेशन ऑफसेट ही यूज करते हैं। पेजिनेशन तो रिकॉर्ड सेट वेयर यूज करके तो करना पड़ता है ना हमको तो। रिकॉर्ड सेट और यूज करके करना पड़ता है, तो ऑफसेट तो लगाओगे ना। रिकॉर्ड सेट और थोड़ा ना कर देगा हर एक काम। नहीं नहीं नहीं, वो तो पता है। स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ ओके आप ओके। स्टैंडर्ड की हाँ बात कर रहे हो, रिकॉर्ड सेट वॉल की एक्सटेंशन कंट्रोलर की बात कर रहे हो। हाँ स्टैंडर्ड हाँ। सेट कंट्रोलर की बात कर रहे हो, सॉरी आप, है ना? मैं हाँ स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर की अच्छा, बात कर रहे हो ना? स्टैंडर्ड सेट, हाँ मैं स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो उस टाइम पे होता है रिकॉर्ड सेट वॉल, बट वो फिजिबल नहीं होता सॉल्यूशन हर जगह। हम्म। आपको ऑफसेट लगाने पड़ता है। ओके, ओके फाइन। गेटर सेटर मेथड क्या होता है? लाइक टू कॉल भी ज्वाइन नहीं किया हाँ यार, आपने कॉल बुलवा दिया मेरे को। कॉल भी ज्वाइन नहीं किया मैंने बोला फोन पे रख दूंगा मैं साइड में रख के। आपने ज्वाइन ही नहीं किया है। कहाँ किया है, भूल गया मैं। चलो कोई ना, कोई गेट आए। मतलब हाँ, हाँ हाँ, बोलो बोलो। गेट मतलब कि विजुअल फोर्स पेज से हम अगर कंट्रोलर में जो डेटा पास करते हैं वो गेट मेथड से, और सेट में जो डेटा हम रिट्रीव करते हैं कंट्रोलर से और उसको दिखाते हैं, वो सेट मेथड के लिए यूज होता है। हाँ, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, गेट, और सेट करने उसमें वैल्यू डालते हैं तो सेट है। गेटर सेटर हाँ। हाँ, ओके ओके, या करेक्ट। जैसे हम विजुअल फोर्स पेज के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है एपेक्स क्लास के अंदर, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, और उसका मैं विजुअल फोर्स पेज से डिफाइन करके मैंने वहाँ पे यूआई पे दिखा दिया। और जो मैं उसके अंदर कोई वैल्यू डाल रहा हूँ ना, तो वो उसके अंदर वैल्यू सेट होगी। तो उसके अंदर वैल्यू सेट होगी, जो वहाँ पे जा रहा है एपेक्स क्लास से विजुअल फोर्स पेज साइड जा रहा है वो तो गेटर हो गया। और जो वहाँ पे कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो वो दोबारा विजुअल फोर्स से एपेक्स क्लास साइड आ रहा है, वो सेटर हो गया। ठीक है। हेलो, हाँ मैंने हाँ बोला। बोला? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ओके। सो ठीक है, फिर कल करते हैं, वो भी आ जाएंगे कल। अच्छा, कल के लिए क्या क्या पढ़ना है बताओ तो। कल के लिए आपको आपको डेवलपमेंट कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटाडेटा, कस्टम लेबल, हम्म कस्टम ऑब्जेक्ट, हम्म एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। हम्म ओके ठीक है। ठीक है, हम्म ठीक है। ठीक है तो मदन। कल कितने बजे? देखते हैं यार, अब मैं क्या बताऊं, वो मैडम पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं, वो कल अवेलेबल रहेगी, मैं उससे बात की थी। ठीक है, देखते हैं ठीक है हाँ। फिर। बाय। ओके।